class we studied diffraction. So diffraction मैंने I had explained to you थोड़ा बहुत diffraction के एक तो form of diffraction था, एक Fresnel's diffraction था, if you remember. Diffraction I had diffraction में एक था Fraunhofer diffraction, Hofer diffraction. The other was Fresnel's diffraction. अब उसमें मैंने सिर्फ ये कहा था ये Fresnel's and Fraunhofer diffraction में there was only one thing which was remaining, or which was thing कि जो presence of source in case of Fraunhofer diffraction था, एक में the source was at infinity, and the in the case of later the source was at a finite distance from the screen. ठीक है. So but जो हमारी जो theory थी in both cases theory थी Fresnel's जो Huygens half wavefront theory थी. जो primary wavelets and secondary wavelets they somehow interfere in a manner such that the wavelength of the incoming light और जहाँ पर diffracting source है वो comparable होना चाहिए. तो हम तभी diffraction observe कर सकते हैं. वो sharp edges, for example razor blade होगा या कोई भी होगा, whichever way you want to see it. Experimentally हम इसको कैसे we are going to see the things. So in the last classes हमने वो जो analysis किया था Fraunhofer diffraction का पहले हमने single slit केस किया था, फिर double slit के लिए किया था, and we generalized a formula for n slits. फिर उसका intensity pattern distribution देखा था, first maxima कैसे आता था, second, so on and so forth. So there that was Fraunhofer diffraction. तो वहाँ हमने what was the thing that lens जो था वो हम कहते थे कि incoming light infinity से आती है. तो वो हम कैसे मैनिपुलेट करते थे, हमने दो लेंसेज रखते थे between screen से पहले उसके बाद में, such that the construction is such that as if the light comes from infinite source to the जो screen पे जो आ रहा था. Infinite means a very large distance normally in physics. Infinite is not a mathematical infinite. Now in this our today's class we are going to study Fresnel's. हमारा जो होगा वो will concentrate on Fresnel's diffraction. Fresnel's diffraction में और इसमें फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ जो screen है it's at a finite distance from the source. So this is the difference in Fresnel's diffraction. So if I want to write it in writings में थोड़ा सा मैं इसको Huygens Fresnel's so we'll say that the distance between source and screen जो है that will come out to be finite. ठीक है. So that's it. So अगर incoming यहाँ से ये aperture है, d distance है, ठीक है, this is incoming source of light. यहाँ से आप देखो, यहाँ से देखो आप, तो this is d distance, ठीक है. तो the light comes through this narrow opening. This is the point AP, this is the point A, and this is the point B. So diffraction of plane wave by a circular aperture. ठीक है. So this is what we are doing. So diffraction of a plane wave by a circular aperture. Aperture means a narrow opening जहाँ से ये incoming light आती है. So जो diffraction के लिए हम normally कहते हैं ना, normal it should be narrow.
and it should be comparable to the incoming wavelength. So that's it. So यहाँ से incoming आती है, so edges पे ये diffract होती है. There is a primary wavelet and secondary wavelet. They interfere in a manner so उसका effect हमको screen पे दिखता है. ठीक है? This is what we have done in your previous thing also. And you can do the analysis the same you did in the just like Young's double slit experiment. In our previous analysis what we have done, screen पे हम फिर measure करते हैं maximum, इसका कैसे आएगा, first maxima, second maxima, so on and so forth. Now we are going to do the same thing. इसमें याद से what you have to remember is that it's the distance between the screen and the incoming source is finite. So if you take this analysis, so we have to now study Frenzel's. हम इसका एक स्टडी करेंगे in a manner, इसको हम कहते हैं Frenzel's half period zones. Half period zones. So इसमें थोड़ा सा मैं ज़िम्नन अर्ज करूँगा कि that I would like to say that in the history of optics जो है ना ये 16th century पहले हम corpuscular theory में believe करते थे. We could explain some experiments like reflection, refraction, rectilinear propagation of light from Newton's corpuscular theory. फिर when wave theory came out, so light, understanding light as a wave. तो पहले we could understand things from wave theory. So diffraction as a phenomena also it's a continuation. If we try to study light as a wave theory, light को हम as a wave study करेंगे in terms of waves. So if you study light in terms of waves, तो हम जो Huygens की जो theory है primary wavelet and secondary wavelet. Each wavelet has its primary wavelet and secondary wavelet. So diffraction as a phenomena is interference between the primary and secondary wavelet in some certain proportion, in a certain manner. So that's what we are going to study. So we are studying light as a wave, basically. This is what I want to say, emphasize, basically. So, but इसमें we had a formula for diffraction. Now we study Frenzel's how Frenzel's tried to explain it from the Huygens wavelet theory, जो हमारे पास थी already. So in our class today's हम will study Frenzel's half period zones. तो अगर हम diagrammatically we will try to understand it. For example, diagrammatically, so अगर ये हमारे पास कोई भी screen है, जैसे पिछले डायग्राम मैंने दिखाया था इनकमिंग वेव एट ए फाइनाइट स्क्रीन पे आता है, तो इफ वी हैव अ सर्टेन स्क्रीन लाइक दिस, a certain screen, ऐसे आता है स्क्रीन, तो स्क्रीन इज मेड ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स कुछ नहीं है, दे आर हाफ पीरियड जोन्स. अब वो मैं कैसे आई ट्राई टू एक्सप्लेन. इट्स लाइक दिस, ऐसे ऐसे. यू कैन मेक स्क्रीन एज मच बिग एज पॉसिबल. आई जस्ट थोड़ा सा स्क्रीन को हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं. ठीक है, ठीक है. सो वी कैन इंक्रीज वन फर्दर. इसमें हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे. तो बेसिकली ये है कि जो इनकमिंग वेव है यहाँ से, है ना, वेव फ्रंट आता है, तो इसका इसको कहेंगे. तो यहाँ पर अगर ये अगर O है, ये सेंटर ऑफ दैट ईच सेमी सर्कल और हाफ पीरियड जोन है, तो यहाँ से यहाँ पर पॉइंट पे ये होगा पॉइंट P. तो यहाँ से डिस्टेंस हम रखेंगे B. तो इट इज नथिंग डिफरेंट वेव फ्रंट्स, हाउ दे, उसका जो पैटर्न हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे कैसे होगा. ठीक है, जिस तरह हम वहां पर ऑब्जर्व करते थे ना, फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमा, फिर सेकंड ब्राइट मैक्सिमा एंड अवॉइड सो ऑन एंड सो फोर्थ. या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम ऑब्जर्व कर रहे थे डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ऐसे. इसी तरह यू आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन एक्सप्लेन, अगर हम डिस्टेंस between source and the screen is finite,
how we are going to observe the effects or the patterns on the screen पे हम कैसे observe करेंगे. तो we'll take for example first wave front, इसका length होगा lambda, second wavelength इसका wavelength होगा lambda कुछ plus lambda by 2 plus 2 lambda by 2 3 lambda by 2. So accordingly, if it's a constructive interference or a destructive interference, so it will be integral multiple of half wavelength or integral wavelength, जो जैसे हमने कहा था. So in case कि हम पहला wave front लेंगे, for example इसका distance यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, और जो consecutive wavelength होगा उसका कुछ होगा थोड़ा सा extra distance, जिस तरह हमने वहाँ screen पे observe किया था. For example, अगर for example if you remember on the screen, तो ये screen था हमारे पास, ठीक है. तो for example यहाँ से ये wavelet आती थी, यहाँ से दूसरा आता था. So this will travel in case for example in case of Young's double slit experiment कुछ extra wavelength. So if that would have been half integral wavelength, जो फिर यहाँ पर interfere होके यहाँ पर देता था. So this extra part difference जो in case of for example Young's double slit experiment. In case of Fraunhofer diffraction हमारे पास यहाँ लेंस था ऐसे, तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल वेव जाता था, अगर ये यहाँ से अब दूसरे वेव फ्रंट आता था, ये भी यहाँ से पहुँचता था, मगर जो ये दूसरा वेव फ्रंट था इसका वेवलेंथ पार्ट डिफरेंस थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता था फ्रॉम प्राइमरी वन. सो एट द एंड इंटरफेरेंस, सो इट शुड हैव बीन जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस, फिर इसमें हमने फेज फैक्टर का भी लाया था कंसिडरेशन जब हम कर रहे थे ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस फाई. बट इनिशियली यू कैन से जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है फिर दैट इस वेव फ्रंट का, इस इनकमिंग वेव और इसका, दैट डिटरमाइन यहाँ पर कैसे हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे. सो इन द सेम मैनर वी हैव अ वेव, एक हाफ पीरियड जोन होगा, एक वेवलेट होगा, फिर उसका कंसेक्यूटिव वेवलेट होगा, फिर उसका कंसेक्यूटिव वेवलेट होगा. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग, और ऊपर से जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर यहां से जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा. तो एट दिस पॉइंट जो वेवलेंथ होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर लेंगे, इस पॉइंट पे लेंगे हम, सो एक को लेंगे Qn+1 एंड दूसरे को हम लेंगे Qn, ठीक है. तो एंड इट्स x, तो यहां से आप इसको ऐसे करेंगे. सो ये है ना Qn एक, और उसका सब्सिक्वेंट वेव फ्रंट क्या आएगा, या इसका नीचे वाला आएगा Qn-1, इसका अगर Q ये वेव फ्रंट है, इसका Qn+1 है, इसका नीचे वाला आएगा Qn-1, इसी तरह होते 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 x. सो इसका फॉर एग्जांपल अगर ये यहां से यहां तक डिस्टेंस है, सो जो एक्स्ट्रा जो हम करते थे ना पाथ डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स, ऊपर वाले और नीचे, तो इट शुड बी सम इंटीग्रल. सो जो कंसेक्यूटिव वेव लेंथ है वो डिनोटेड बाय b प्लस n लैम्डा बाय 2, ठीक है. b प्लस है ना, n इज द फर्स्ट वेव फ्रंट, तो लैम्डा बाय 2 आएगा. दूसरे के लिए आएगा n लैम्डा, अगर 2 होगा b प्लस लैम्डा प्लस अगर 3 आएगा 3 लैम्डा बाय 2. सो करते करते, सो इट विल एग्जॉस्ट ऑल द वेव फ्रंट्स ऑन विच आई हैव पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन. तो यहां तक तो ठीक है ना, यू हैव ये बात मेरी समझ आई? हाँ, हेलो, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ, ठीक है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये तो पिक्टोरियली हाउ वी आर गोइंग टू सी इट्स एनालिसिस ऑन द स्क्रीन. बट अब इसमें है कि मैथमेटिकली वी आर गोइंग टू डू सम स्टेप्स, और अगर आप इसको इफ यू वांट टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ सिंक सर्कल, यहां दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है, इट इज विजिबल. हाँ, ठीक है. सो यू कैन से इट रादर देन इसको स्क्रीन के बगैर ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे एक वेव फ्रंट है, दूसरा वेव फ्रंट है, तीसरा वेव फ्रंट है, ठीक है. तो यू कैन हैव फॉर एग्जांपल आप जहां वहां आप करते थे ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट, आप ये जो ये है ना, ये थोड़ा सा एक तो शार्प लाइन है, एक थोड़ा सा लाइन है, इसको जैसे ये है ब्राइट, ये दूसरा वाला जो एक तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स होगा इंटरफेयर करके, दूसरा हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स करके जो हमारे पास पैटर्न स्क्रीन पे आएगा. जो मैंने ये डॉटेड वाली सेमी सर्कल दिखाया, ये वो वाला है,
इंटीग्रल वाला, ये हाफ इंटीग्रल वाला है. अकॉर्डिंगली यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. अब इसमें हम थोड़ा सा आज इसका हम इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू, तो ये तो हमने जनरल वी डिड समथिंग. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे कि ये किस चीज पर डिपेंडेंट होता है. एंड थोड़ा सा मे बी आई जस्ट डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. सो वी आर गोइंग टू सम द सीरीज. बेसिकली सीरीज को हम सम करेंगे एंड हाउ वी आर गोइंग टू ऐड जो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स का जो एनालिसिस है, उनका जो नेट कंट्रीब्यूशन, हम जिस तरह हम इन योर प्रीवियस फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हमने किया था a cos ओमेगा टी प्लस a cos ऑफ 2 ओमेगा टी, a cos ऑफ 3 ओमेगा टी प्लस a cos ऑफ n ओमेगा टी. फिर वो सीरीज हमने सम की थी, फिर वहां से हमको इंटेंसिटी पैटर्न आया था. ठीक है. सो इन द सेम वे वी आर गोइंग टू टेक द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्मॉल वेव फ्रंट, दूसरे वेव फ्रंट का, तीसरे वेव फ्रंट का, और नेट वेव फ्रंट्स का कितना कंट्रीब्यूशन आएगा. दैट विल अल्टीमेटली कॉरस्पॉन्ड की इंटेंसिटी, हमारी नेट इंटेंसिटी जो हमारी स्क्रीन पे आएगी उसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे. जिस तरह वहां हमने फर्स्ट मैक्सिमा निकाला, फिर सेकंड मैक्सिमा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इन द सेम वे we are also have to sum the series. For example, before we are going to sum the series, what we are going to do is, for example, हम थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे. मैथमेटिकल एनालिसिस ये है, फॉर एग्जांपल ये है, तो ये है ना, ये अगर इफ यू टेक ये एक वेव फ्रंट, यहां से यहां तक डिस्टेंस है b प्लस एन माइनस लेमडा, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है. जो ये रेडियस ऑफ द वेव फ्रंट है, ये यहाँ पर रेडियस ऑफ द वेव फ्रंट किसके, अगर इट्स अ हाइपोथेसिस, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल जैसे क्यू है, तो ओपी ये फॉर एग्जांपल अगर क्यू है तो पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर. अगर ओ क्यू स्क्वायर रेडियस है, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर. ठीक है. ये ओ क्यू जो हमारे पास है, ओ क्यू जो हमारे पास है, ये रेडियस ऑफ द वेव फ्रंट है. यू राइट लाइक आर स्क्वायर. ठीक है. तो रेडियस ऑफ द वेव फ्रंट किसके बराबर है, पी क्यू स्क्वायर. पी क्यू है यहां से यहां तक बी है, बी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर क्या है, ये है ना बी प्लस एन लैम्डा बाई टू, बी प्लस एन लैम्डा बाई टू का होल स्क्वायर है ना. So n can be 1, 2, so all the consecutive wavefronts. First wavelength lambda आएगा, दूसरे में 2 lambda आएगा, so on and so forth. You can do it accordingly. So if you do it, थोड़ा सा इसको अगर हम simplify करेंगे, it is radius of n wavefronts, तो you can also write it like ऐसे, और n square को हम करेंगे कम, और n को अगर हम ये है ना बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस अपनी जगह आप रखो, बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस ट्वाइस एन बी लैम्डा बाई 2. ठीक है. तो ये कट जाएगा इसके साथ. थोड़ा सा इसको हम अब अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बी स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, तो ये एन बी लैम्डा आएगा, ये आर एन स्क्वायर आएगा, एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस एन बी लैम्डा. अब इसमें ये है, यू कैन नेग्लेक्ट दिस फैक्टर एन लैम्डा स्क्वायर बाई 4. इसको हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट, हम कहेंगे ये स्मॉल है. क्यों स्मॉल है, विच आई ट्राई टू एक्सप्लेन. वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट दिस फैक्टर. अगर वेवलेंथ वेरी लार्ज है तो ये तो इट विल कम आउट, और स्मॉल इट विल कम आउट टू बी, इफ यू हैव बी इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू लैम्डा, यू कैन नेग्लेक्ट दिस फैक्टर. ठीक है. बी इज व्हाट, बी जो यहाँ पर ये है वेरी, इससे ज्यादा है. इफ यू डू दिस स्मॉल अप्रोक्सीमेशन, सो यू कैन ऑल्सो राइट एन स्क्वायर एज इक्वल टू एन बी लैम्डा, और or n is equal to root of n b lambda. तो रेडियस ऑफ n वेव फ्रंट, फर्स्ट वेव फ्रंट के लिए रेडियस है r1 के लिए है n b लैम्डा रूट, दूसरे के लिए 1 b लैम्डा 2 b लैम्डा रूट ऑफ 2, ऐसे करके कर डिफरेंट. अब ये है कि
अगर आप एक और चीज कर सकते हैं, एक और चीज आप यहां पर कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज, जो वेवलेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स जो है, हाउ वी कैन डिटरमाइन दैट wavelengths between two consecutive wave fronts. For example, pi of Rn plus 1 square है ना, ये रेडियस है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल, ये सर्कल और कंसेक्यूटिव सर्कल जो होगा, तो डिफरेंस ऑफ टू एरियाज क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल पाई ऑफ Rn प्लस 1 स्क्वायर माइनस pi of, because you will use these formula. So it is the area जो एक वेव फ्रंट का और दूसरे कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट का डिफरेंस जो है ना, how you can write it, you can write it like this. So if you use this approximation here, Rn जो हमारे पास है, Rn जो हमारे पास है nb lambda और Rn स्क्वायर हो गया ये इसको इसके बराबर है. अगर ये अप्रोक्सीमेशन जो इससे पहले हमने की, इसको हम इस अंडरस्टैंडिंग को हम यहाँ टू सबस्टिट्यूट हियर, तो Rn स्क्वायर प्लस क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास, अगर इसको इसके बदले आप लिखोगे पाई, ये तो कंसेक्यूटिव सर्कल है, पाई n प्लस 1 बी लैम्डा माइनस इसका आएगा एन बी लैम्डा, और इट विल बी अप्रोक्सीमेटली, तो एन बी लैम्डा कट जाएगा, तो ये आएगा पाई बी लैम्डा. तो द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ टू कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस फैक्टर. ठीक है, यहां तक ठीक है ना. सो इट्स अंडरस्टैंडेबल. सो इट्स नथिंग, आई हैव डन नथिंग, आई हैव कंप्यूटेड द थिंग्स सिंपल. जो एरिया ऑफ वेव फ्रंट ये वाला और उसका जो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट का है, यूजिंग दिस अप्रोक्सीमेशन ऑफ रेडियस वेयर द बी इज वेरी लार्जर एज कंपेयर टू द वेव लेंथ, तो हम वी कैन हैव जो डिफरेंस आएगा लगभग ये आएगा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू वन थिंग इज, we are going to do one thing is, basically we are going to see, another thing is that the power difference between this and this, P is equal to n lambda by 2. क्यू एन पावर डिफरेंस बिटवीन एक क्यू, ये है ना पी, क्यू पी, ये एक क्यू पी है, एन प्लस 1 पी है, जैसे ये वाला, जैसे ये यहां से यहां ये एक बनेगा ना, है एक लाइन यहां से बनेगी, ये है पी क्यू. तो ये कंसेक्यूटिव पावर डिफरेंस बिटवीन टू जो होगा, दैट विल कम आउट टू बी एन लैम्डा बाई 2. सॉरी ठीक है. सो दिस थिंग, सो अब यहां तक तो हमारा ठीक है. सो व्हाट वी हैव डन, तो अब इन योर आज आई ट्राई टू ओनली, मैं आई जस्ट स्टॉप एट दिस पॉइंट कि हम यहां करेंगे कम. अब हमको क्या करना है कम, जो इंटेंसिटी है ऑफ डिफरेंट वेव फ्रंट्स, ऑफ डिफरेंट वेव फ्रंट्स, वी आर गोइंग टू नाउ ऐड द इंटेंसिटी पैटर्न. The way we added intensity pattern either in Young's double slit experiment, or you do the same in the Fraunhofer diffraction, A cos omega t plus A cos 2 omega t 3 omega ऐसा. So in the same way हम consecutive wave front का intensity pattern को sum up करेंगे. इसको हम कहते हैं, जिससे आप real analysis में, आप real analysis पढ़ा है ना आपने, उसमें हम sum the series करते हैं ना, sum of odd numbers, sum of even numbers, ठीक है, sum of. So in the same way we are going to sum the contribution of different wave fronts by a method which was given by, so we'll do it in the next class. So before we are going to do that thing, तो हम इसको कहेंगे UP जो होगी हमारी इंटेंसिटी पैटर्न, जे फर्स्ट वेव फ्रंट, सेकंड वेव फ्रंट, फिर थर्ड वेव फ्रंट, फिर फोर्थ वेव फ्रंट, so on and so forth. अब प्लस माइनस 2 आता है,
सो इट मे हैव सम फेज के फैक्टर है, माइनस u1 प्लस u2, आप चलो इसको माइनस को रखो, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन्फिनिट सम ऑफ द डिफरेंट वेव फ्रंट्स है, तो वी आर गोइंग टू सम इट। सो बिफोर वी आर गोइंग टू सम इट, इसमें थोड़ा सा ये आप याद रखना, देयर इज अनदर समथिंग एंड अनदर थिंग विच इज कॉल्ड, जो इंटेंसिटी पैटर्न है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन समथिंग कॉल्ड ओब्लिक्विटी। ओब्लिक्विटी हो गया जैसे वो एंगल है ना, एंगल जैसे तिरछा है,